ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ماہ رمضان کے انتظامات کے لیے 5 کروڑ روپے منظور، نائب وزیر اعلیٰ کی قیادت میں جائزہ اجلاس، برقی اور پانی کی باقاعدہ سربراہی پر مجلس نے دلائی توجہ۔ حیدرآباد میں پانی کی مشکلات باعث شرم، وزیر داخلہ کی برہمی، ماہ رمضان میں مؤثر سربراہی نہ ہونے پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ جموں کشمیر کے کٹھوعہ میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل واقعے کے خلاف عوامی برہمی میں شدت، جمعے کو شہر میں زبردست ریلیاں، قاتلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اور یوسف گڑے کے کرشنا نگر کالونی میں مکان میں دھماکے سے دہشت، شوٹنگ کے دوران استعمال ہونے والے بموں کی تیاری کے دوران حادثہ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ماہ رمضان المبارک کے انتظامات کے لیے حکومت نے 5 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں وزیر داخلہ نانی نرسمہا ریڈی، مجلس کے ارکان مقررہ سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، جعفر حسین معراج، معظم خان، کوثر محی الدین اور امین الحسن جعفری کے علاوہ TRS ارکان اسمبلی گوپی ناتھ اور سائنا کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران مجلسی ارکان اسمبلی نے مختلف مسائل پر توجہ دلائی، بالخصوص افطار کے وقت غیر ضروری چالانات، صاف پینے کے پانی، برقی مزدودی اور کچرے کی نکاسی پر بھی توجہ دلائی گئی۔ مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کہا کہ پرانے شہر میں برقی کا مسئلہ جوں کا توں برقرار ہے، فوری اس کی یکسوئی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ حکومت نے اجلاس میں جو وعدے کیے ہیں اسے پورا کرتے ہوئے وقت سے پہلے تمام کام مکمل کیے جائیں گے۔ کہ رمضان کے خصوصی انتظامات کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت برقی کا ہے اور پانی کا ہے۔ پانی کی سربراہی پرانے شہر میں خصوصاً بہت کم ہو رہی ہے، اس کی مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کئی 5-6 MGD اگر اضافہ کرے تو رمضان میں سکون سے رہے گا۔ دوسرے کہ پولیوشن کے شکایتیں بہت ہیں میلا پانی آنے کی، اس کو دور کرنے کے لیے MD واٹر ورکس نے کہا کہ 2-3 دن کے بعد میں خود پرسنل آپ لوگوں کے حلقے میں دورہ کر کے ان شکایت کو دور کریں گے۔ برقی کے تعلق سے بھی شکایت ہے کہ بار بار لائٹ بند ہوتی۔ کل ہی حضرت دارالسلام میں نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ صدر مجلس نے آب رسانی کے عہدیداروں کو بلا کے ضروری ہدایتیں دی اور ہمارا اراکین اسمبلی سے بھی تجاویز طلب کیے الیکٹریسٹی کے لیے۔ اس لیے بہت سارے ٹرانسفارمر کو انہانس کرنے کے لیے کچھ موبائل ٹرانسفارمر اور کچھ نئے ٹرانسفارمر نصب کرنے کے لیے تجاویز پیش کیے۔ اس پر رمضان سے پہلے اس کی تکمیل کرنے کا محکمہ برقی کے عہدیداروں نے وعدہ کیا۔ حیدرآباد جو انچارج کمشنر پولیس چوہان صاحب، ان کو توجہ دلائی گئی کہ عین افطار کے وقت مساجد کے پاس لوگ موٹر سائیکلیں رکھ کے افطار کو مسجد میں دوڑتے ہیں، سیرن بجتا ہے نماز کے لیے، افطار کے لیے، اور آنے کے بعد ان کی گاڑی کو ٹریفک پولیس سیز کر لیتی، چالان کرتی ہے۔ کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے، ان کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت میں تھوڑا مسلیوں کو، روزداروں کو سہولت دی جائے، کیونکہ ویسے وقت پہ چالان کرنا مناسب نہیں ہے روزدار کو۔ تو کمشنر صاحب نے وعدہ کیا کہ ہم ہدایت دیں گے کہ ایسے وقت پہ کوئی چالان نہیں کریں گے، بلکہ مقام عید کا عرصے دراز سے منظمہ ہیں ٹپکے اور ہر سال مینٹیننس کر کے اس کو تعمیر ترمیم کی جاتی ہے، اس سال بھی کیے جائیں گے۔ لیکن 1 کروڑ کا ایک اسٹیمیٹ تھا نئے بیت الخلاء کا مقام عید کا، جو پینڈنگ میں پڑھتے پڑھتے اب اس کو ریوائز اسٹیمیٹ دیکھے تو 1 کروڑ 98 لاکھ کا ہوا ہے۔ بہرحال بلدیہ کے کمشنر نے اس کو ایک اسکیم میں، جو سینٹر گورنمنٹ کی اسکیم آئی، اس میں 8 کروڑ روپے ملے، تو اس میں یہ داخل کر کے اس کو شامل کر کے وہ نئے ٹوائلٹس کا کام آغاز کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رمضان کے بعد وہ ٹوائلٹس کی منظوری ہوگی، اس کے کام کا آغاز ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ رمضان تک نئے ٹوائلٹس بنیں گے۔ توقع ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بلکہ اس سے زیادہ اس سال بہتر انتظامات ہوں گے۔ ہر محکمے کے لوگوں نے تعاون کا پیشکش کیا۔ رمضان کے خصوصی انتظامات میں مجلس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا یہ انتظامات
हैदराबाद के MLAs के साथ जो मीटिंग है, इसी तरीके से हुकूमत की तरफ से पूरे तेलंगाना में सर्कुलर जारी करके इसी नौयत के इंतजाम किए जाए तो मुनासिब है। मकाम के पास पार्किंग के लिए मुमताज़ अहमद खान साहब एक तजवीज़ रखे कि वो आप बैरिकेड हटा लो बोल के, उसके ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर के साथ दौरा करके जायज़ा लेंगे। जहाँ भी एक कुशादा जगह है वहाँ पार्किंग के लिए इंतजाम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि 24 घंटे तक रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुली रखने की इजाज़त दी जाएगी। किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। 50 से ज़्यादा मोबाइल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मसाजिद के पास दिन में 2 बार कचरे की निकासी की जाएगी। नायब वज़ीर आला ने बताया कि बाग़-ए-आमा मस्जिद की अराज़ी का मसला भी रेवेन्यू और वक्फ अहदेदारों के साथ मुआयने के बाद हल किया जाएगा। इजलास में लिए गए फैसलों पर अमल करते हुए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। इंतजाम का जायजा लेने के लिए दौरे भी किए जाएंगे। इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर, GHMC और दूसरे महकमे जात के अहदेदारों ने भी शिरकत की। तेलंगाना के अंदर जितने होटलें हैं उन तमाम को 24 घंटे खोलने रखने की इजाजत दी गई है ताकि रोजगारों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और खरीदारों को भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो। और GHMC बहुत अच्छी तरह से एक्टिव काम करेगा। वाटर उसको भी पानी के बारे में तमाम होटलदारों को हिदायत दी गई है कि कहाँ पर भी तकलीफ ना हो और जहाँ मस्जिदों के लिए जहाँ से भी अगर एक फोन आएगा, कोई लेटर आएगा तो वहाँ फ्री पानी प्रोवाइड किया जाएगा। एश्योरेंस दिया है कि हम अच्छे से अच्छी सर्विस देते हैं, हमको जितनी जरूरत है उसे तकमील की जाएगी। थैंक यू। 5 करोड़ रुपए तो मस्जिदों की रिपेयरिंग है, बाकी का जितना भी खर्चा होगा उसके लिए कोई बजट के लिए, रोड्स के लिए, अप्रोच के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, वो तो अपने तरफ से हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरफ से रहेगा कि मस्जिदों के लिए चुनने के लिए दागदोजी के लिए छोड़ो 5 करोड़ रुपए सेंक्शन। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में पानी की मुश्किलात बात से शर्म है। रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में तलब किए गए इजलास में वज़ीर दाखिला उस वक्त बरहम हो गए जब पीने के पानी की सरबराही के मसले पर तबादला ख्याल हो रहा था। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत एक तरफ 24 घंटे पीने के पानी की सरबराही की बात करती है, लेकिन शहर में पीने के पानी की किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही हैं। ये हमारे लिए बात से शर्म है। वज़ीर दाखिला ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर माह रमज़ान में पीने के पानी की मुश्किलात पेश आती हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने बताया कि उनके हल्के मुशीराबाद में 2 घंटे के बजाय सिर्फ 40 मिनट पानी सरबराह किया जा रहा है। पुराने शहर में पीने के पानी के मसाइल पाए जाते हैं। वज़ीर दाखिला की बरहमी पर वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर ने बताया कि पुराने शहर में रमज़ान में 7 MGD पानी ज़ायद सरबराह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इजलास में इमारत और शवारे, GAD, सिविल सप्लाईज और ट्रांसको के अहदेदारों की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। हैदराबाद मेट्रो रेल ने हफ्ते से अपनी खिदमात में मजीद वसअत देते हुए गाड़ियों की आमदरफ्त और रफ्तार में इजाफे का ऐलान किया है। मेट्रो रेल के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक कम्युनिकेशन पर मबनी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के जरिए गाड़ियों की रफ्तार में तेज़ी और उनकी आमदरफ्त में तोसी मुमकिन हुई है। मसरूफ़ औक़ात सुबह 8 ता 11 और शाम 5 ता 8 बजे के दौरान हर 7 मिनट पर और गैर मसरूफ़ औक़ात में हर 8 मिनट पर ये गाड़ियाँ मियाँपुर ता अमीरपेट और नागोल ता अमीरपेट चलाई जाएंगी। इन खिदमात में तोसी की वजह से नागोल ता सिकंदराबाद का फासला 16 मिनट, नागोल ता अमीरपेट 32 मिनट और नागोल ता मियाँपुर का फासला 55 मिनट में तय होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने अफराद ख़ानदान के साथ शिरडी पहुंचकर साईं बाबा मंदिर में ख़ुसूसी पूजा की। जुमे के दिन बेगमपेट एयरपोर्ट से ख़ुसूसी तैयारी के जरिए वज़ीर आला रवाना हुए। उनके हमरा उनकी अहलिया, अरकान पार्लियामेंट कविता, संतोष कुमार के अलावा दूसरे अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। वज़ीर आला जुमे की शाम हैदराबाद वापस हो गए। TS EdSET 2018 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख बिना किसी देरीना फीस 20 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल की गई है। कन्वीनर TS EdSET 2018 प्रोफेसर मधुमती के मुताबिक देरीना फीस 500 रुपये के जरिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को EdSET इम्तहानात मुनक्किद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमनक्स ने आज सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक्किद करते हुए बिल्डिंग रेगुलेशन से मुताल्लिक ऑनलाइन दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की मुकर्ररा 21 दिनों में यकसुई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। GHMC, HMDA, DTCP के अहदेदारों के अलावा अजला, मेडचल, रंगारेड्डी के कलेक्टर्स और दूसरे अहदेदार इस इजलास में शरीक थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बिल्डिंग रेगुलेशन ऑनलाइन दरखास्तों के अलावा LRS की दरखास्तों की यकसुई की हिदायत दी है। उन्होंने HMDA के कमिश्नर चिनेजुलू से कहा कि मुतल्लिका इमारतों की जांच के लिए ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए गए। गैर कानूनी तामीरात का जायजा लेने उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों से कहा कि वो हुकूमत से जारी करदा हुक्मनामे पर अमल करें। कांग्रेस के अरकुन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मुख्तलिफ एजेंसी इलाकों में पीने के पानी की मुश्किलात से अवाम परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस बस यात्रा के दौरान अवाम ने अपनी मुश्किलात से वाकिफ करवाया है। हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। किसानों को दी जाने वाली स्कीमों से खौलदार किसानों के लिए मजीद मुश्किलात पेश आएंगी। रियासत के किसान परेशान हैं तो वज़ीर आला तीसरे महाज के लिए दूसरी रियासतों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कितनी भी साजिशें कर लें, कांग्रेस को इख्तिदार में आने से हुकूमत नहीं रोक पाएगी। कांग्रेस SC सेल के सदर ए मोहन ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में दलितों पर जुल्म हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहन ने बताया कि इन हमलों के खिलाफ 23 अप्रैल को दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। रियासत में 200 ता 300 कारकुन एहतजाज में हिस्सा लेंगे। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मोहन ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल से दलितों के बजट में कमी कर दी। दलितों के आला तालीम के फंड्स को कम कर दिया गया। राज्यसभा में दलित मुलाजमीन को तरक्की देने के बिल को भी मंजूर नहीं किया गया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में SC/ST मुलाजमीन एसोसिएशन ने अम्बेडकर जयंती की तकारीब मुनक्किद की। इस तकरीब में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, नायब वज़ीर आला महमूद अली, T श्रीनिवास यादव और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर के श्रीहरी ने कहा कि इस तरह की तकारीब मुनक्किद करने से अजीम कायदीन की जिंदगियों से अवाम को वाकिफ कराया जा सकता है और उनकी खिदमात से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के कठवा में कमसिन लड़की आसिफा की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ जुमे को शहर में जबरदस्त एहतजाजी मज़ाहिर हुए और रैलियां निकाली गईं। शहर के मशरिकी, मगरबी, शुमाली और जनूबी जोन्स में तलबा और नौजवानों की तरफ से रैलियां निकाली गईं और आसिफा की इस्मत रेजी के जिम्मेदार मुलजमीन को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। दबीरपुरा, चंद्रानकोटा, मगलपुरा, मेहदीपट्टनम, टूरी चौकी, दारुसलाम, पंजशाह, चारमीनार, मलकपेट और दूसरे इलाकों में भी रैलियां निकाली गईं। आसिफा से इजहार यगानगत करते हुए नारे लगाए गए। रेती बोली के पास बाज नौजवानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले को जलाने की कोशिश की। मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जॉइंट कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने बताया कि शहर में 50 रैलियां निकाली गईं। जुनूबी शहर में सबसे ज्यादा 18 रैलियां निकालते हुए आसिफा से इजहार यगानगत किया गया। पुलिस की तरफ से रैलियों के दौरान गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। इधर मक्का मस्जिद के पास जुमे को उस वक्त हलचल देखी गई जब जम्मू के कठवा में इस्मत रेजी और कत्ल का शिकार आसिफा के इंसाफ के लिए सैकड़ों नौजवान नमाज जुमा के बाद जमा होकर नारेबाजी करने लगे। सैकड़ों नौजवानों के अचानक मक्का मस्जिद के पास जमा हो जाने से पुलिस हरकत में आ गई। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण और उनके मातहतीन भी मक्का मस्जिद के पास पहुंच गए। नौजवानों को बाद में समझाकर मुगलपुरे की तरफ रवाना कर दिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए DCP साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि
जमहूरी अंदाज में एहतजाज के लिए पुलिस मुमकिना ताउन करेगी, लेकिन गैर मुनज़्ज़म और बगैर इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीसीपी ने बताया कि पुलिस की तरफ से आसिफा मामले की हसासियत को देखते हुए एहतजाज की इजाज़त दी जा रही है। उनका कहना था कि मासूम आसिफा के साथ घिनौनी हरकत की गई है। डीसीपी ने आसिफा की इस्मत रेज़ी के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि इसके लिए एहतजाज फितरी है, लेकिन बाज़ बैरूनी अनासिर इसकी आड़ में अमन को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी ने बताया कि भारत बंद के ऐलान का कोई असर नजर नहीं आया। उन्होंने बताया कि तमाम एहतजाजी मज़ाहरों की रिकॉर्डिंग की जा रही है। मक्का मस्जिद बम धमाका केस के मुकदमे के फैसले के बाद पहले जुमे की वजह से पुलिस के गैर मामूली इंतजामात देखे गए। सर, कुछ दिनों से सोशल मीडिया में ये बात अपील की जा रही थी कि 20th को भारत बंद मनाया जाएगा, लेकिन उसका सपोर्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। उसके बावजूद आज हैदराबाद में कुछ जगहों पर बंद देखा गया, और आपके साउथ जोन में कैसा रहा बंद? मैं 2 दिन से ये सोशल मीडिया में देखने के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस एल्डर्स को भी पता कर लिया। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बातचीत कमेंट्स कर रहा है, जो रैली से हो रहा है, उनका वो परमिशन दे दिया। वो जानिब से उन लोगों को जानिब से हो रहा है, लेकिन भारत बंद का वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल किया नहीं। 467 मस्जिद है पुराना शहर पे, तो ये पूरा वेरी अमन शांति से आज कंप्लीट हुआ। तो भारत बंद का मामला वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं, अभी तक वो प्रेयर्स के बाद सभी लोग खुले रहे हैं। सर, मक्का मस्जिद नियर चारमीनार मक्का मस्जिद के पास कुछ स्लोगन्स लगाए गए। कुछ अचानक 200-300 लोग कुछ आके चारमीनार के पास स्लोगन्स रेज कर दिया। वो आसिफ का सॉलिडारिटी में हम ये लैंड ऑर्डर पॉइंट में नहीं देख रहे हैं। उनका मन में कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो गया। वो मासूम बच्चे हैं। हर एक देश में हर एक एरिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका बातचीत पूरा चल रहा है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेशन और रैलीज को हम पूरा मदद कर रहे हैं। आज भी 18 रैलीज चारमीनार का आने वाले हैं। अभी कुछ 4-5 शुरू हो गए संतोष नगर से, तो हम पूरा मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा स्लोगन्स रेज करेगा तो कुछ पता नहीं, वो डायरेक्शन लेस हो के कुछ लैंड ऑर्डर का मामला डिसरप्शन होने के लिए पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ रेसिडेंट्स कुछ बाहर से भी आया लग रहा है, तो हम पूरा रिकॉर्ड कर दिया। लोकल पब्लिक का और पुलिस का अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, स्पेशली साउथ जोन में। तो लास्टली आप क्या अपील करना चाहेंगे साउथ जोन पब्लिक को? ये आसिफ का इशू बहुत सेंसिटिव है, सेंसेशनल है, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग इन द एंटायर कंट्री। तो इसीलिए जो लोग मन में वो सॉलिडारिटी एग्जिबिट कर रहे हैं, आज नहीं कल परसों आगे दिन में भी हम पूरा मदद करेंगे डेमोक्रेटिक वे में। वो जो एग्जिबिट करेगा तो, लेकिन बाहर से कुछ गड़बड़ करने के लिए कोशिश करेगा तो मैं उनको कानूनी के अंदर हम एक्शन ले लेंगे। आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए हैदराबाद हाई कोर्ट के पास वकला ने धरना दिया। एहतजाजी वकला का कहना था कि तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों को पूरा करने में मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। रियासत के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस मौके पर मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा डिवीजन के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। उन्होंने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। अलावाजी उन्होंने मुकामी अफराद से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और इनकी एकसुई की अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर छावनी डिवीजन के रुकन बलदिया मोहम्मद मुर्तज़ा अली, सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के इलाके चिर्रा और मस्जिद अबू बकर का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जाफर हुसैन मेराज ने रमज़ान मुबारक की आमद से पहले मस्जिद अबू बकर के ज़रूरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
ओवैसी ग्राउंड मलकपेट में अहमद बलाला क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में मुरादनगर की टीम ने मलकपेट की माइक टीम को हरा दिया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हुए जीतने वाली और रनर अप टीम को अवार्ड के अलावा रकमी इनाम भी दिया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहम्मद शफी के अलावा क्रिकेट शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ DRDL के पास नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुक़ामी अवाम ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम मुतवफ़ी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। कोकटपल्ली सफदरनगर में पुलिस की तरफ से कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। DCP माधवपुर वेंकटेश्वर राव की क़यादत में 250 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। पुलिस ने 28 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया है, जबकि दरकार दस्तावेजात न होने पर 68 टू व्हीलर, 27 ऑटोज और एक गाड़ी को जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि गैर समाजी अनासिर पर नजर रखने और अवाम में एतमाद बहाल रखने के लिए ये तलाशी मुहिम अंजाम दी गई है। यूसुफगुड़े की श्री कृष्णानगर कॉलोनी में एक मकान में धमाके से खौफ व दहशत देखी गई। इस वाक़े में एक शख्स शदीद झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स फिल्मों में शूटिंग के लिए धुएं के बम तैयार किया करता था। बम की तैयारी के दौरान ही यह हादसा हुआ, जिसमें बम तैयार करने वाला शख्स झुलस गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर जख्मी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। धमाके की वजह से मकान में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कोकटपल्ली चिंतारामा मंदिर के पास टिम्बर डिपो में आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया। बताया गया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब शॉर्ट सर्किट की वजह से यह वाक़ा पेश आया। मुक़ामी अफराद की इत्तला पर 5 फायर इंजन ने मुक़ाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। 10 लाख रुपए से ज़ायद माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। माह रमजान के इंतजामात के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। नायब वज़ीर आला की क़यादत में जायजा इजलास। बरक़ी और पानी की बाकायदा सरबराही पर मजलिस ने दिलाई तवज्जो। हैदराबाद में पानी की मुश्किलात बाद से शर्म। वज़ीर दाखिला की बरहमी। माह रमजान में मौसर सरबराही न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जम्मू कश्मीर के कठवा में कमसिन लड़की की इस्मत रजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ अवामी बरहमी में शिद्दत। जुमे को शहर में जबरदस्त रैलियां। खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और यूसुफगुड़े के कृष्णानगर कॉलोनी में मकान में धमाके से दहशत। शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले बमों की तैयारी के दौरान हादसा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।